ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲଜିକ୍ ବା ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି କି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଆଉ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସର କନଭର୍ସନ୍ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଭରସନ୍। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ଓଭରସନ୍। ତ ଓଭରସନ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି କି ଓଭରସନ୍ ଆଉ କନଭର୍ସନ୍ ଏଥର +2 ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କନଭର୍ସନ୍ ଆଉ ଓଭରସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ କନଭର୍ସନ୍ ଓଭରସନ୍ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଓଭରସନ୍ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଓଭରସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଭରସନ୍ 4ଟି ଆଉ 4ଟି ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ଓଭରସନ୍। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଭରସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଓଭରସନ୍ର ଡେଫିନେସନ୍। ତ ଓଭରସନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଓଭରସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। କନଭର୍ସନ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କି କନଭର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇନଫରେନ୍ସ, ଓଭରସନ୍ ବି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଓଭରସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ immediate inference in which the subject of the conclusion, ଯେଉଁଥିରେ the subject of the conclusionର ସବଜେକ୍ଟଟା is the same as the subject of the premise, ଯାହାକି ପ୍ରେମିସ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ସହ ସମାନ ରହିବ, ମାନେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ରହିବ ନାହିଁ ସବଜେକ୍ଟରେ। and the predicate of the conclusionର predicateଟା is the contradictory of predicate of the premise, contradictory of predicate of the premise। conclusionର predicateଟା premisର predicateର contradictory ହେବ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ଆମେ ବୁଝିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ, ତ କେବଳ ଡେଫିନେସନ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ the premise is called overtained, ପ୍ରେମିସ୍କୁ ଓଭରସନ୍ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଓଭରଟେଣ୍ଡ। and the conclusion is called obverse, conclusionକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା obverse। ତ କନଭର୍ସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପ୍ରେମିସ୍କୁ କନଭର୍ଟେଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନକୁ କନଭର୍ସ କୁହାଯାଏ କନଭର୍ସନ୍ରେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଓଭରସନ୍ରେ ବି ରହିଛି କି ଓଭରସନ୍ରେ ପ୍ରେମିସ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଓଭରଟେଣ୍ଡ and the conclusionକୁ କୁହାଯାଏ obverse। ତ ତା ଡେଫିନେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଓଭରସନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇନଫରେନ୍ସ। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିଡକ୍ଟିଭ୍ ଇନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ଓଭରସନ୍ in which ଯେଉଁଥିରେ the subject of the conclusionର ସବଜେକ୍ଟଟା is the same as the subject of the premise ସହ ସମାନ ରହିବ। and predicate of the conclusionର predicateଟା is the contradictory of predicate, contradictory ରହିବ କାହାର ନା predicate of the premisର contradictory ରହିବ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ, ଯାହା ଥିବ ତାର ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ। premise is called overtained and the conclusion is called obverse। premisକୁ overtained କୁହାଯାଏ ଆଉ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଓଭର୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଓଭରସନ୍। ଓଭରସନ୍ର ରୁଲ୍ କନଭର୍ସନ୍ ଭଳି ଓଭରସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ରୁଲ୍ ରହିଛି। କେତୋଟି ରହିଛି ନା 4ଟି ରୁଲ୍ ରହିଛି। ତ 4ଟି ରୁଲ୍ କ'ଣ ନା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି the subject of the obverse subject is the same as the subject of the overtained and the predicate of the obverse is the contradictory of the predicate of the overtained। ଯାହା ଡେଫିନେସନ୍ ରହିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍। the subject of the obverse ମାନେ କ'ଣ conclusion of the ଓଭରସନ୍ର କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଓଭର୍ସ କୁହାଯାଏ। ତ ଓଭରସନ୍ର subject of the obverse is the same as the subject of the overtained। କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଓଭରସନ୍ର ପ୍ରେମିସ୍ଟାକୁ। ତ ପ୍ରେମିସ୍ର ସବଜେକ୍ଟ ସହ କନକ୍ଲୁଜନଟା ସେମ୍ ରହିବ। ଆଉ predicate of the obverse is the contradictory of the predicate of the overtained। ପ୍ରେଡିକେଟଟା କ'ଣ ହେବ ନା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେଇଯିବ। ତ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ ରହିଲା ନା କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଓଭରଟେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଓଭର୍ସ ଚେଞ୍ଜ। ଏଠାରେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି
ମାନେ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ଯଦି ଥିବ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ବୋଥ୍ ଓଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଟେନ୍। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯାହା ରହିଥିବ ସେୟା ହିଁ ରହିବ। ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରହିଥିଲେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ରହିବ, ପାର୍ଟିକୁଲାର ରହିଥିଲେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହିଁ ରହିବ। ତ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମ୍ ରହିବ। ତ ତାପରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍, नो ଟର୍ମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଭର୍ସ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଭରଟେନ୍। ଏଇ 4 ନମ୍ବର ରୁଲ୍ଟା ହେଉଛି କମନ୍ ରୁଲ୍, ଯାହାକି କନଭର୍ସନ୍, ଅଭର୍ସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରାପୋଜିସନ୍, ଇନଭର୍ସନ୍ ସବୁଥିରେ ହିଁ ରହିଛି। ତ नो ଟର୍ମ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଭର୍ସ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଓଭରଟେନ୍। ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଟର୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହୁଏ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଜାଣିଲେ କି 4ଟି ରୁଲ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଓଭର୍ସନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହିବ, ଆଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ସେମ୍ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେବ। କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ମାନେ ତା ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇନ୍ ବା ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇନ୍ ହେଇଯିବ, ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ନେଗେଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ପଜିଟିଭ୍। ତ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ଓଭର୍ସନ୍, କେଉଁ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ଓଭର୍ସନ୍ କ'ଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ଓଭର୍ସନ୍। ତ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ ଓଭର୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ର ସାଇନ୍ କ'ଣ ନା ଅଲ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ପି, ଅଲ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ପି, ଅଲ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ପି ଏଇ ଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଏ ପ୍ରପୋଜିସନ୍କୁ। ତ ଏ ଅଲ୍ ଏସ୍ ଇଜ୍ ପି, ଏଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରେମିସ୍ ବା ଓଭର୍ସନ୍ର ଓଭରଟେଣ୍ଡ। ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛେ ଓଭରଟେଣ୍ଡ। ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ଓଭର୍ସନ୍ ହେବ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ରୁଲ୍ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ ଅଛି ନା ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଓଭରଟେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭର୍ସ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଓଭରଟେନ୍। ସବଜେକ୍ଟଟା ସେମ୍ ରହିବ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ଟା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେବ। ତ ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ସେମ୍ କରିବା, ଉପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ କି ଏସ୍ ଅଛି, ତଳେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏସ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଉପରେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଜାଗାରେ କିଏ ଅଛି ନା ପି ଉପରେ ପି ଅଛି, ପ୍ରେମିସ୍ରେ ପି ଅଛି। ତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ ପିଟା ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ବା ନଟ୍ ଡେସ୍ ପି ହେଇଗଲା, ମାନେ ପି ଯାହା ବି ରହିବ, ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଯାହା ବି ରହିଥାଉ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇନ୍ଟା ହେବ। ଏଠି ପି ଏଠି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେଲେ ନଟ୍ ଡେସ୍ ପି ବା ନଟ୍ ଲାଗିଯିବ ବା ନଟ୍ ଡେସ୍ ପି ଲେଖାଯାଏ, ଡେସ୍ ଦେଇ ଲେଖାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଟା ପିକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛି, ପୁରା ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ନୁହେଁ। ତ ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇନ୍ ହେଲା ବା କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ କ'ଣ ରହିଲା ନା କ୍ୱାଲିଟି ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ବା ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ଥିଲେ ନେଗେଟିଭ୍, ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲେ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ହେବ। ତ ଏ କ'ଣ, ଏ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ବା ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଠି ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ହେଲେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେବ। ତ ଏ ଯେହେତୁ ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ହେବ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍। ତ ଇ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ନେଗେଟିଭ୍, ସେଥିପାଇଁ ଇ ନିଆଗଲା ନେଗେଟିଭ୍, କାହିଁକିନା କ୍ୱାଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ଏଠି ଏଫାର୍ମେଟିଭ୍, ଇ ନେଗେଟିଭ୍। ଆଉ ତୃତୀୟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଇଜ୍ ସେମ୍ ଇନ୍ ଓଭର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଓଭରଟେନ୍। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସର୍ବଦା ସେମ୍ ରହିବ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସବୁବେଳେ ସମାନ ରହିବ। ତ ଏଠି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ଆଉ ଇ ବି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, AEIO। ତ ଏ ଆଉ ଇ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍, ତେଣୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏଠି ସମାନ ରହିଲା। ତ ଇଏ ରୁଲ୍ ବି ଠିକ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା। ତ ଚତୁର୍ଥ ରୁଲ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ କି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍। ଯଦି ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଠିକ୍। ତ नो टर्म कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओभर्स इफ इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओवरटेन। ओभर्स जो टर्म डिस्ट्रीब्यूट ହେଇଥିବ ଏଟା ଯଦି ଓଭରଟେନ୍ରେ डिस्ट्रीब्यूट ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଟା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଓଭର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମାନେ ଏଇଠି କନକ୍ଲୁଜନ୍, ଏଠି ଅତଏବ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଥାଏ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଓଭରଟେନ୍। ତ ଏଇ ଅତଏବ ଦେଇ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଓଭରଟେଣ୍ଡ। ଓଭରଟେଣ୍ଡରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ରହିଛି, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଟର୍ମ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଉପରେ ଓଭର୍ସ ବା ପ୍ରେମିସ୍ରେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଟା
इनभैलिड हो। तो आम देखा ये किपरि ये डिस्ट्रीब्यूट होउची कि नहीं। तो ये प्रपोजिशन क्यों टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे ना बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो एस टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कला आउ नॉट डैश पी को पी टर्म को डिस्ट्रीब्यूट कला नॉट डैश पी को खाली पी नुहे कहीं डैश लगला माने एटा पी सहित संयुक्त बा जड़ित। तो ये बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हेले तो सब्जेक्ट जगह एस अच्छी प्रेडिकेट जगह नॉट पी अच्छी तो एस डिस्ट्रीब्यूट है पी डिस्ट्रीब्यूट है। तो तले जेहेतु दुईटी डिस्ट्रीब्यूट होती आम ऊपर भी देखा कि दुईटी डिस्ट्रीब्यूट हो कि नहीं। तो ए प्रपोजिशन क्या को डिस्ट्रीब्यूट करे ना ओनली सब्जेक्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो सब्जेक्ट टर्म किए अच्छे ना एस अच्छी तो एस डिस्ट्रीब्यूट है तो तले भी एस डिस्ट्रीब्यूट होपर भी एस डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ ठीक ठाक रहा। तो ये नॉट पी अच्छी ऊपर जेहेतु नॉट पी ना खाली पी रही पारे कि नॉट पी ना नॉट डैश पी ना। तो जेहेतु नॉट डैश पी ना डैश लगे पी सहित जड़ित तो नॉट डैश पी ना तो टर्म कौन प्रोब्लेम ना तेणु यहाँ भैलिड होगला। ए प्रपोजिशन ओभरसन कौन बाहर ना ई ए प्रपोजिशन ओभरसन ई। तो आम तार डेफिनेस तार किसी वाक्य लिखिपर लॉन्ग क्वेश्चन ले निश्चित भाव लिखा हम कि ए प्रपोजिशन किपर भाव होता है ओभरसन ए प्रपोजिशन ओभरसन किपर होता है। तो किपर होता है लिखा पड़ो। तो हियर द सब्जेक्ट ऑफ द ओभर्स इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द ओभर्स सब्जेक्ट ऑफ द ओवरटेन सब्जेक्ट ये सेम रही ये ऊपर एस तले एस सब्जेक्ट ये सेम रही। तो प्रथम रूल ठीक ठाक रहा एंड द प्रेडिकेट ऑफ ओभर्स इज द कॉन्ट्राडिक्टर ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द ओवरटेन आउ प्रेडिकेटा कॉन्ट्राडिक्टर हम ऊपर पी रही तले नॉट डैश पी रही तो कॉन्ट्राडिक्टर हो गला ठीक ठाक रूल अच्छी। क्वालिटी ऑफ ओवरटेन ओभर्स चेंज क्वालिटी भी चेंज रहा एज एज एफर्मेटिव इज नेगेटिव ए रु ई है तो एफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो क्वालिटी चेंज होती। क्वांटिटी इज सेम इन बोथ ओवरटेन एंड ओभर्स क्वांटिटी भी सेम रही कारण बोथ आर यूनिवर्सल ए आउ ई यूनिवर्सल। देयर इज नो वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म में कौन सी रूल वायोलेशन है ना। तो सो द ओभरसन ऑफ ए इज ई ओभरसन ऑफ ए इज ई। तो ए ओभरसन ई हो गला। तो ई प्रपोजिशन भी से भाव हम। तो ई प्रपोजिशन ई नो एस इज पी आठार एसटा तले एस सामान है सब्जेक्ट सामान है आ प्रेडिकेट ये सॉरी ये नॉट डैश पी लिखा था भूल लिखिदे। तो ये पी ये पी प्रेडिकेटा कॉन्ट्राडिक्टर हम तो पूरे पी पॉजिटिव अच्छी तले नेगेटिव है नॉट डैश ये जगह गोटे डैश लगे तो नॉट डैश पी तले नेगेटिव हो गला। आउ क्वालिटी चेंज होती ई आउ ए क्वालिटी चेंज होती आउ इन क्वांटिटी सेम रही जेहेतु ई आउ ए यूनिवर्सल बोथ आर यूनिवर्सल तेणु क्वांटिटी भी सेम रही आ क्वालिटी चेंज होती जेहेतु यहाँ ई नेगेटिव एफर्मेटिव तो क्वांटिटी चेंज हो गला सॉरी क्वालिटी चेंज हो गला। तो तीनोटी रूल फुलफिल होगा आउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म रे ए प्रपोजिशन क्या डिस्ट्रीब्यूट करे ना एस टर्म सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूट करे सब्जेक्ट यार किए अच्छे ना एस टर्म अच्छी ऊपर एस डिस्ट्रीब्यूट होती जेहेतु ई प्रपोजिशन बहुत सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करता है एस आ पी को डिस्ट्रीब्यूट करता है से तले एस डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर तले एस भी तले एस डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर भी एस डिस्ट्रीब्यूट है तेणु डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म में कौन सा प्रोब्लेम रहा ना। तो तेणु यहाँ भैलिड हो गला। तेणु ई प्रपोजिशन वर्जन ए है हम से भाव लिखिपर हियर द सब्जेक्ट ऑफ द ओभर्स इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द ओवरटेन सब्जेक्ट सामान है एंड द प्रेडिकेट ऑफ द ओभर्स इज द कॉन्ट्राडिक्टर ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द ओवरटेन प्रेडिकेट कॉन्ट्राडिक्टरी है क्वालिटी ऑफ ओवरटेन एंड ओभर्स इज चेंज क्वालिटी चेंज होगा ई नेगेटिव एंड ए इज एफर्मेटिव आउ क्वांटिटी इज सेम इन बोथ ओवरटेन एंड ओभर्स क्वांटिटी सेम रहा जेहेतु ए आउ ई यूनिवर्सल एज बोथ आर यूनिवर्सल देयर इज नो वायोलेशन ऑफ रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म में कौन वायोलेशन रहा सो द ओभर्स ऑफ ई इज ए ओभर्स ऑफ ई इज ए तार है आई प्रपोजिशन से भाव हम बुझा आउ तार डेफिनेशन सबुआड़े जिपर भाव लिखाई से भाव लिखा केवल आई आई रही
आ सबू जहाँ रही से तो केवल आम बुझा कि आई रवर्स किपरि भाव होता है। तो आई सम एस इज बी हेले एस सब्जेक्ट अवर्सन नियम अनुसार सब्जेक्ट सेम रही एस अच्छी तले एस रहा ठीक ठाक रही प्रेडिकेटा नेगेटिव प्रेडिकेटा कंट्राडिक्टोरी हम अपोजिट साइन हम तो पी जेहेतु ये पॉजिटिव अच्छी तले नेगेटिव ये नॉट डैश पी हम डैश लगे टाइपिंग मिस्टेक हो तो नॉट डैश लगे तो पी उपर एफार्मेट पॉजिटिव अच्छी तले नेगेटिव होगला कंट्राडिक्टोरी होगला। तो प्रथम नियम ठीक ठाक रहा क्वालिटी चेंज हो तो आई हूँ पर्टिकुलर एफर्मेटिव तो एफर्मेटिव क्वालिटी रही तो तले ओ रहा तो नेगेटिव होगा ओ हूँ पर्टिकुलर नेगेटिव तो ऊपर एफर्मेटिव तले नेगेटिव क्वालिटी चेंज होगला आ क्वांटिटी सेम रही ओ दुई जन नाके होती पर्टिकुलर क्वांटिटी एपाई दुई जन नाके सामान रहा क्वांटिटी सेम रहा तो तृतीय रूल भी फुलफिल होगला। तो चतुर्थ रूल केवल देखा डिस्ट्रीब्यूट हो ना तो ओ टर्म क्या ओ प्रपोजिशन क्या डिस्ट्रीब्यूट करे ना ओनली प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करे ओनली प्रेडिकेट माने नॉट डैश जेहेतु नॉट डैश पी अच्छी प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी तो ये नॉट डैश पी अच्छी नॉट डैश पी ये डिस्ट्रीब्यूट है ऊपर जेहेतु नॉट डैश पी ना तेने भायोलेसन ऑफ रूल कौन असुविधा ना टर्म डिस्ट्रीब्यूशन किसी असुविधा ना से वैलिड होगला। तो आई प्रपोजिशन वर्सन हूँ ओ प्रपोजिशन तो से भाव में लिखिपर सब्जेक्ट लिखि जहाँ ऊपर लिखले से टाइप हिं लिखा तो ये किसी कहूना तो वीडियो को पॉज करी से नोट लिखि ने जेहेतु टाइम आम पाखे टाइम बहुत कम अच्छी तो आम बेसी कहबानी आम केपरी भाव अवर्सन हम जाना। तो ओ प्रपोजिशन अवर्सन सेपरी भाव हम कि सम एस इज नॉट पी सम ओर फॉर्म कौन ना सम एस इज नॉट पी तो सब्जेक्टा सामान सब्जेक्ट सामान रहा प्रेडिकेटा चेंज हम प्रेडिकेट किए अच्छी ना पी केवल पी अच्छी नॉट तो सम एस इज नॉट पी यहाँ फॉर्म नॉट पी लगे जहाँ भी डैश लगी ना तो ये पी हूँ प्रेडिकेट तो पी कंट्राडिक्टोरी कौन हवा आवश्यक ना नॉट डैश पी कौन हम ना नॉट डैश पी ये नॉट डैश पी लगे कथा लिखिदेव नॉट डैश पी ये भूल हो जाए नॉट डैश पी लिखे ये एस एस सामान है सब्जेक्ट सामान है प्रेडिकेट पी ऊपर केवल पी अच्छी तले नॉट डैश पी लगे तले ये आई सम एस इज नॉट डैश पी पी प्रेडिकेट ऊपर अच्छी तले कंट्राडिक्टोरी हो तो नॉट डैश पी लगे सब्जेक्ट सामान है प्रेडिकेट कंट्राडिक्टोरी होगला क्वालिटी अपोजिट अच्छी ओ आई क्वालिटी अपोजिट अच्छी चेंज अच्छी क्वांटिटी सेम अच्छी आई ओ जेहेतु पर्टिकुलर क्वांटिटी सेम अच्छी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन आई प्रपोजिशन क्या डिस्ट्रीब्यूट ना क्या डिस्ट्रीब्यूट करे ना तले जेहेतु क्या को डिस्ट्रीब्यूट करना तो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी भायोलेसन रहा ना रहा तेणु यहाँ वैलिड तेणु अ प्रपोजिशन वर्ष हम आई प्रपोजिशन से भाव आम लिखिपर कि सब्जेक्ट ऑफ द हियर द सब्जेक्ट ऑफ द वर्स इज सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द अबटेंड एंड प्रेडिकेट ऑफ द वर्स इज द कंट्राडिक्टर ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ द अबटेंड से आम लिखिपर डेफिनेशन लिखि सरी पार एतिक अवर्सन डेफिनेशन आउ किपरि है जानिले हाँ एतिक लंग क्वेश्चन जब पढ़े तो ये जाए लिखिपर तो किसी 3 मार्किया 2 मार्किया सर्ट क्वेश्चन पड़ी थाए तो ये विषय रही से रहा कौन ना कन्वर्सन बाय नेगेशन ये गोटे पॉइंट जहाँ 3 मार्किया पड़ी थाए निश्चित भाव जाना आवश्यक। तो कन्वर्सन बाय नेगेशन बाय कौन तो अ प्रपोजिशन कैन नॉट बी कन्वर्टेड अ प्रपोजिशन के कन्वर्टेड हो पारे ना जानी अ प्रपोजिशन कन्वर्सन ना तो ड्यू टू भायोलेसन ऑफ रूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म अनुसार अ प्रपोजिशन कन्वर्सन ना बट अकॉर्डिंग टू सम लॉजिशियन केते जन लॉजिशियन को अनुसार अ प्रपोजिशन कैन बी कन्वर्टेड अ प्रपोजिशन कन्वर्टेड हो पार कन्वर्सन हो पार बाय ए प्रोसेस गोटे प्रोसेस माध्यम नोज कन्वर्सन बाय नेगेशन ताको आम कन्वर्सन बाय नेगेशन बोली कही था
कन्वर्सन बाय नेगेशन यही प्रोसेस अनुसार ओ प्रपोजिशन कन्वर्सन हो पार। देखा किपर हम तो ई नेगेटिव साइन ऑफ द ओ प्रपोजिशन नेगेटिव साइनटा विल बी ट्रांसफर टू द प्रेडिकेट साइड यदि ट्रांसफर कर दिया जाए देन दैट बिकम एन आई प्रपोजिशन दैट आई प्रपोजिशन कैन बी कन्वर्टेड टू एन आई प्रपोजिशन। तो डेफिनेशन है बुझा किपर भाव हो तो ओ रो फॉर्म कौन ना सम एस इज नॉट पी। तो जो वाक्य नोट अच्छी सम फॉर्म अनुसार एस इज नॉट पी अच्छी तो ये जो नोटा को यदि आम प्रेडिकेट साइड को नहीं आसवा प्रेडिकेट साइड को यदि आम ट्रांसफर करदे ताल आई प्रपोजिशन किपर हम ना आई यदि आई सम एस इज नॉट एस पी तो पी सहित जोड़ी गला तो आई फॉर्म अनुसार होगा सम एस इज पी जगार प्रेडिकेट जगह नॉट डेस पी। तो आई प्रपोजिशन होगा जेहेतु नटा पी साइड पड़ेगा वाक्य न रही पी साइड की प्रेडिकेट साइड को पड़ेगा गोटे आम जानले कि नट डेस पी जो लगी प्रेडिकेट हो जाए गोटे बोली प्रेडिकेट हो जाए नेगेटिव प्रेडिकेट हो जाए कि वाक्य केवल नेगेटिव हुए ना। तो सम एस इज नट डेस पी यार फॉर्म सम एस इज पी हो तो आई प्रपोजिशन हो गला। तो आई प्रपोजिशन कन्वर्सन अच्छी आम जानते आई प्रपोजिशन कन्वर्सन आई तो आई सम एस इज कन्वर्सन कौन हो ना सब्जेक्टा प्रेडिकेट हो प्रेडिकेटा सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाए तो ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट हो प्रेडिकेट किए हो ना नट डेस पी यही दुईटा मिसिकी गोटे प्रेडिकेट अच्छी तो सेटा सब्जेक्ट हो गला नट डेस पी पलैला आई प्रपोजिशन कन्वर्सन आई तो आई फॉर्म अनुसार सम नट एस पी इज एस हो गला। तो यही भाव ओ प्रपोजिशन रो आई प्रपोजिशन रो कन्वर्सन बाहर ताकू आम कही था कन्वर्सन बाय नेगेशन एटा को किए कहते ना सम नदी सेन कहते। तो तापर यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन कौन जाना द कन्वर्सन ऑफ ए प्रपोजिशन आई आम जानते कन्वर्सन ऑफ ए हूँ आई ए रो कन्वर्सन हूँ आई अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ कन्वर्सन रूल अनुसार तो दैट कैन नॉट बी एन ए प्रपोजिशन कन्वर्सन के ए हो पारे आम देखिए जानी रूल ऑफ भालुएसन हो तो हो पारे ना बट अकॉर्डिंग टू हामिल्टन होती जड़े लजिशियन तो अकॉर्डिंग टू हामिल्टन देयर आर सम रेयर केसेस किसी रेयर केसेस अच्छी क्वचित केस अच्छी where an a proposition becomes a conversion of a proposition ए प्रपोजिशन कन्वर्सन टा ए हो क्वचित केस अच्छी तो दैट ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन इज दैट ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन दैट कॉल्ड यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन ताकू आम यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन बोली कही था जिते ए प्रपोजिशन टा ए प्रपोजिशन कन्वर्सन ए हम से आम ताकू कही था कि यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन ये एक भिन्न धरण कन्वर्सन। तो आम देखा किपर ए ऑल मेन आर रेशनल एनिमल तो तार अतएव कनक्लूजन है ए ऑल रेशनल एनिमल आर मेन तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट रोचे सब्जेक्ट प्रेडिकेट रोचे प्रेडिकेट सब्जेक्ट रोचे जेहेतु मेन और रेशनल एनिमल समान मेन मान कौन मनीष रेशनल एनिमल माने सामाजिक पशु किए ना केवल मनीष तो अर्थ हूँ मनीष जहाँ रेशनल एनिमल से तेणु दुई जन के समान तो ये रूल ऑफ भायोलेसन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म किसी प्रोब्लेम ना ये रेशनल एनिमल डिस्ट्रीब्यूट होपरे भी मेन डिस्ट्रीब्यूट हो तो रेशनल एनिमल माने सीधा सड़क जीव मनीष पाखक कि सामाजिक मनीष हो सामाजिक पशु हो मनीष। हियर द डिनोटेशन ऑफ टर्म मेन एंड रेशनल एनिमल आर सेम जेहेतु मेन और रेशनल एनिमल अर्थ सामान तेणु ए प्रपोजिशन कन्वर्सन ए बाहर ताको आम कौन कही था ना कन्वर्स यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन ताको आम कौन कही था ना यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन ताको यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन बोली कही था ये जो प्रपोजिशन आम यू टाइप ऑफ प्रपोजिशन बोली कही था। तापर कौन है मेटेरियल अवर्सन तो मेटेरियल अवर्सन भी गोटे रही मेटेरियल अवर्सन कौन जाना बेन बेन माने हूँ बेन होती लजिशियन तो बेन है गिवेन ए न्यू टाइप ऑफ अवर्सन गोटे नुआ तरह नुआ टाइप रो अवर्सन कहते नोन एज मेटेरियल अवर्सन मेटेरियल अवर्सन कहुए
which is materially true ବା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସତ but not in accordance with the rule of abortion। ଅବର୍ଷଣ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ହେଉନାହିଁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଭୁଲ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ସେଟା ହେଉଛି ଠିକ୍। ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଉପରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁସାରେ ବେସ୍ ଅଛି। ହିଅର୍ ଦ ସବଜେକ୍ଟ and predicate of the obverse is the opposite of the subject and predicate of the overturned ବା respectively। ମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟୋରୀ ହେଇଥିବ। ତ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଫ୍ ଓଭରଟର୍ଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅବର୍ସ ରିମେନ୍ ଅନଚେଞ୍ଜ। କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ମେଟେରିଆଲ ଅବର୍ସନ କ'ଣ ଅଛି, ଯେପରିକି ନଲେଜ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ଏଇଟା ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା, ଯେହେତୁ ନଲେଜ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ନଲେଜ ଭଲ ଆଉ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍। ବାସ୍ତବିକ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଏଟା ଅବର୍ସନରେ ଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବେନ୍ ଏକ ନୂଆ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମେଟେରିଆଲ ଅବର୍ସନ ବା ବାସ୍ତବିକ ଏଟା ଅବର୍ସନ ହେଉଛି। ତ ଏତିକିରେ ଆମ ବିଷୟ ସରିଲା। ତ ଇ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ତ ପୁଣି କହି ରଖିବି କି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତ ସେଇ ବିଷୟରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇ ବିଷୟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି। ତ ଏତିକିରେ ସରିଲା। ତ ଇ ଟିଚିଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ। ତ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।